Poetry. Poetry has the extraordinary ability to distill the depth of human emotion into words, forging a profound connection between us. As we immerse ourselves in the poems shared tonight, I invite you to surrender to the emotions, resonate with the experiences, and revel in the mosaic of voices that makes our community a vibrant tapestry of life. Good evening. I am Divya Gosai from Mumbai, your host and host for the special evening. As a proud ambassador for the Spectrum Awareness Project, I'm excited to share with you our mission of fostering inclusion and bringing diverse perspectives together to create a richer understanding of the world. As we gather to celebrate Jeevan Ke Rang, the colors of life, we welcome the vibrant spirit of spring and the auspicious occasion of Ram Navami. Tonight, let's come together to spread joy, happiness, and inclusivity, painting the world with hues of love, compassion, and unity. Let's give a warm welcome to our talented participants as they share their unique perspectives and experiences, painting a vibrant picture of life through their words. As we collect these beautiful moments, let's immerse ourselves in the kaleidoscope of emotions, thoughts, and stories that make our community more richer. So, in the queue, let me welcome first Arav Trivedi. So, about Arav Trivedi, he is a 17 years old boy on autism spectrum. He is a non speaking but can communicate through other means. He currently goes to a special school and is also good at sports and academics. In his spare time, he likes to watch rhymes and movie songs and foods videos. So, on his behalf, his mother will be voicing his emotions. So, let's welcome Palak Trivedi. Divya, Palak is not there. Remember, I mentioned. Oh, all right. So, all right. So for Palak, for Araf, I think okay. We'll continue with Araf's recital later on. Next in the queue is Abha Maheshwari ji. अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से एमए पीएचडी कर चुकी आभा जी एक सम्मानित लेखिका हैं। जीवन आभा, जीवन तरंग, अंतर्मन का प्रतिबिंब आदि इनके प्रकाशित संग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। हमारे बीच इनकी उपस्थिति बहुत ही अतुलनीय है। तो चलिए स्वागत करते हैं आभा महेश्वरी जी का। आई थिंक शायद कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया है। It's all good. She's here. Just announce her name, ओके, please. श्योर। सो हम स्वागत करते हैं आभा महेश्वरी जी का। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार। सबको रामनवमी की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत और बहुत शुक्रिया मैम। मैंने जिस समय ये कविता लिखी थी उस समय होली का समय था, तो इसमें होली के रंग ही मैंने निखारे हैं। जी मैम। सुनिए, जीवन के रंग हैं निराले, जीवन के रंग हैं निराले, सपनों से सजे हैं मतवाले। जीवन के रंग हैं निराले, सपनों से सजे हैं मतवाले। होली त्योहार है मस्ती वाला, होली त्योहार है मस्ती वाला, ईर्ष्या द्वेष मिटाने वाला, ईर्ष्या द्वेष मिटाने वाला। होली की ज्वाला में जलकर, होली की ज्वाला में जलकर सब कुछ निर्मल हो जाता है। होली की ज्वाला में जलकर सब कुछ निर्मल हो जाता है। मन के पाप सभी मिट जाते हैं, जीवन में आनंद समाता है, जीवन में आनंद समाता है। सुख सुख दुख का मेल है प्यारा, सुख दुख का मेल है प्यारा, हर पल में छिपा एक राज हमारा, हर पल में छिपा एक राज हमारा। हंसी के रंग हैं उजले, हंसी के रंग हैं उजले, आंसू के भी गहरे हल्के। हंसी के रंग हैं उजले,
आंसू के भी रंग हैं गहरे कुछ हल्के। हर दिन एक नई तस्वीर है, हर दिन एक नई तस्वीर है, जो हमें सिखाती प्यार का धीर है। हर दिन एक नई तस्वीर है, जो हमें सिखाती प्यार में रखना धीर है। होली के रंगों में खो जाने का मजा, होली के रंगों में खो जाने का मजा, हर रंग में छिपा एक अनोखा सा सपना, हर रंग में छिपा एक अनोखा सा सपना। जीवन के रंगों में बसा है एक अनोखा आनंद, जीवन के रंगों में बसा है एक अनोखा सा आनंद। होली पर्व तो है रंगों का एक अद्भुत आयोजन, होली पर्व तो है रंगों का एक अद्भुत आयोजन। जीवन के विविध रंग हैं निराले, जीवन के विविध रंग हैं निराले, सपनों से सजे हैं विविध रंग। अति मत वाले जीवन के रंग हैं निराले, जीवन के रंग हैं धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर मैम। और इससे ज़्यादा सुंदर शुरुआत इस शो की हो ही नहीं सकती थी कि आपने सारे रंगों को एक ही तरीके से पिरो लिया, एक ही माला में उनको बुन के आपने हमारे सामने उन हर रंग की आपने इम्पोर्टेंस बताई है कि कैसे हर रंग की अपनी एक लाइफ में महत्व है। तो बस हर रंग को एंजॉय करें और इसी के साथ हम अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आभा मैम। धन्यवाद। हमारे साथ श्रृंखला में नेक्स्ट जुड़ेंगी आस्था चड्ढा जी। Asta is a media veteran with over 23 years of experience and is deeply passionate about Indian literature and fashion. So she is a wonderful storyteller too, who is a part of Inclusion Drive. So let's welcome Asta Chadda ji. नमस्कार। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे जब ये विषय पता लगा जीवन के रंग, तो मैंने शिवाली जी से बोला कि जीवन के तो बहुत रंग होते हैं, खुशी गम, खोना पाना, मिलना बिछड़ना। तो मुझे मतलब इसमें से कौन से रंग पर कविता सुनाऊं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। बट फिर मुझे कुछ एक कविता याद आई जो मैंने थोड़े समय पहले लिखी थी, तो वही आप सबके साथ बांटना चाहूंगी। बहुत-बहुत स्वागत है। एक रोज जिंदगी ने सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक दी, घबराई सी, सहमी सी, बोली कदम रुक गए यहीं पर मेरे, मैं ना अब चल पाऊंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, डरकर वो वहीं रुक गई थी। मैं भी रुकी पल भर को, सोचा कितना आसान है वक्त के आगे हार जाना, पर उससे ज्यादा मुश्किल है उससे लड़ जाना। कभी सोचती मुड़ के जाऊं अतीत में, कुछ लम्हे चुरा लाऊं, जिंदगी गुजार दूं उन्हीं के साथ, यहीं रुक जाऊं। फिर महसूस हुआ वक्त नहीं रुकता, जिंदगी नहीं थमती, मैंने सिर्फ दौड़ना सीखा है, रुकना नहीं। आने वाले कल के साथ चलूं, नया रास्ता बनाऊं। और आज सुबह जिंदगी ने फिर दरवाजे पर दस्तक दी, बोली नाज होगा तेरे बीते कल को तुझ पर। तू हारी नहीं, तू रुकी नहीं, तूने दौड़ना सीखा था, तू थमी नहीं। गजब, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। और आई थिंक आस्था जी आपके इस रिसाइटल के साथ आज बहुत लोग रेजोनेट भी कर पाए होंगे कि जीवन सिर्फ चलने का नाम है और ये जीवन हमें हर रोज हर पहर नए रंगों का एक्सपीरियंस कराता रहता है। तो बस जीवन चलने का नाम है। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड कीप मूविंग विद ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। So thank you so much आस्था जी for your esteemed presence मैम। थैंक यू सो मच। तो चलिए जीवन के रंगों को हमारे कैनवस को और सजाते हैं। हमारी अगली पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। अगली पार्टिसिपेंट के बारे में हम सब बखूबी जानते हैं, फिर भी उनका परिचय मैं चंद शब्दों से देना चाहूंगी कि 7 दशकों से प्रेम के रंगों से खुशहाली बांटती हुई मीनाक्षी जी को घर संवारने और बागवानी का शौक बहुत है। अपनी कलम से आज खुशियां बांटती हैं और इन्हीं का आज हम स्वागत करते हैं हमारे मंच पर और इनसे सुनते हैं जीवन के रंगों के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। तो मैं सीधे अपनी कविता ही पढ़ूंगी। जी बिल्कुल आप बिल्कुल, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। जीवन के रंग, जीवन में रंग तो हजारों रहे, जीवन में रंग तो हजारों रहे, मायने उनके वक्त संग बदलते रहे।
कैनवास पे रंगे रंग तब ख्वाबों के थे, कैनवास पे रंगे रंग तब ख्वाबों के थे, इंद्रधनुषी रंग बन आज दमकने लगे। कभी मन सावन सा हरा भरा रहा, याद कर तेरा संग मद मस्त रहा। झड़ी सावन की नैनों से ऐसी लगी, रंग जीवन में कितने बिखराती रही। क्या बात है। हर रंग संग हम भी खेला किए, हर रंग संग हम भी खेला किए, छेड़ बसंत जो गया बसंती हम हो गए। पोपले नई देख जीवन सजाने लगे। रंगीन तितलियां रंगीन फूलों पे मंडराने लगी। देख आया बसंत बागों में बौराती फिरी। देख प्रकृति के रंग मन प्रफुल्लित हुआ। जीवन फिर से जैसे सुसज्जित हुआ, जीवन फिर से जैसे सुसज्जित हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मीनाक्षी जी, ये कहना गलत नहीं है कि आप सबसे आज जीवन के बारे में डेफिनेटली आप लोगों की जो रिसाइटल्स हैं दैट होल्ड सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, और उससे सबको सीख ही मिलेगी। तो बस यही एक लाइन जो आपने बोले कि बसंत आकर जब चला गया हमको बसंती कर गया, तो बिल्कुल लाइफ का रोज एक नया दौर जब आता है कुछ ना कुछ सिखाकर चला जाता है, उससे सब सीख के हमें आगे चलते रहना चाहिए। बहुत सुंदर। तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आपका आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कैनवस पे अगले जो पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है नलिनी श्रीवास्तव जी। ये आज हमारे कैनवस पे कौन से रंग लेकर आती हैं। अ ब्यूटीफुल मॉम ऑफ अ टीनेजर इज अ टीचर बाय प्रोफेशन। नवाबों के शहर लखनऊ से आई नलिनी जी आज जीवन के रंग को लेकर मंच को सुशोभित करेंगी। तो चलिए स्वागत करते हैं नलिनी श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सभी को और रामनवमी की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं लखनऊ से हूँ और कविता मेरे लिए एक जीवन है और जीवन के सारे रंग जो मौका मिला मुझे बताने का, तो मैं अपनी कविता पेश करती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीवन के रंग है कुछ अलबेले से, जीवन के रंग है कुछ अलबेले से, कभी अलसाते तो कभी खेले से, चलती रेलगाड़ी के पीछे भागते रेले से, और कभी मिलते और बिछड़ते कुंभ के मेले से। रंग ना होता तो कौन चाहता फीका फीका जीवन, रंग ना होता तो कौन चाहता फीका फीका जीवन। चुन लो हाथ बढ़ाते और रंग लो अपना तन और मन। कहने को लाल रंग प्यार का और काला अंधकार का, कहने को लाल रंग प्यार का और काला अंधकार का, पर क्या इतना है आसान रंग चुनना आसमान का। एक रंग दुख और सुख का तो एक रंग अरमान का, एक रंग दुख और सुख का तो एक रंग अरमान का, एक रंग उस अजनबी का तो शोक रंग पहचान का। आंसू खुशी का तो बहते अलग रंग में, पर दुख के आंसू ना चाहे चलना संग में। मिलन जुदाई उस खुदा की खुदाई, खुशी के रंग अनेक फिर भी उदासी में विदाई। जन्म और मृत्यु के कितने रंग हैं उस इंद्रधनुष से, और कितने रंग गिनाऊं सबको है सब अलबेले से, जीवन के भागते रेले से। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर रचना आपने पिरोई है नलिनी जी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आसमान में आप कौन सा रंग बखेरना चाहेंगे। और बिल्कुल जैसे मैं हर बार यही कहूंगी, हर एक की रचना के बाद यही कहूंगी कि कैनवस हमारे को ऊपर वाले ने दिया है, हमें उसकी नियामत मिली है कैनवस। बस उसे कितने प्यार से आप रंगीन कर सकते हैं, कितने सुंदर तरीके से। जैसे हम जानते हैं हमारे पास 3 ही प्राइमरी कलर्स हैं, बाकी कलर्स तो हमें बनाने हैं, तो वो हमारे एक्सपीरियंसेस से बनेंगे। तो बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी मैम, थैंक यू सो मच। तो ये कैनवस अब तक रंगता जाएगा और हमें बहुत खुशी है कि आप सबने इतना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। अपने अपने जीवन के रंगों के कुछ कुछ हिस्से हमारे साथ साझा करने के लिए आप आए हैं, और हमारे दर्शकों को, हमसे जुड़े हुए सभी जनों को बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ जुड़ेंगी पद्मप्रिया सुरेश जी। Padmapriya is a tech-savvy teacher, orator, storyteller, mother of two teenagers, a homemaker, and a co-team member too. She is also the founder of Story Basket, a platform where she connects with her audience, making meaningful conversations. So let's welcome Padmapriya Suresh. Thank you, Divya, for the wonderful introduction. Hello, everybody. Good evening. Namaste. Very And good evening. the poem I'm going to recite is about my colorful life. Life is not painted with colors all the time. So, what should we do? And how do we paint it with colors full of life? Let's see. My colorful life. I sat on my chair still. Childhood memories energized every nerve cell. What a life! So carefree and colorful. Days filled with study and fun. Fairs, tours, and projects on the run. I flew like a colorful butterfly in the sun. Gradually, all the colors disappeared, instilling me with doubts and fear. A vast self research revealed a clear proof. My non acceptance, changing life, made my colors black and white. Come what may, accept life as it is. Fill it with colors and paint happiness. It's in our hands, undoubtedly, to make our life colorful so vividly. Thank you so much. That's so wonderful. Absolutely, that yes, if we'll not pay gratitude and we'll keep cribbing, complaining, our canvas will always remain black and white. It is up to us how we shade the colors in our canvas. So that was a wonderful thought shared by Padmapriya Suresh. Thank you so much, Padmapriya. Thanks a lot. So yes, in the queue, next we have Purnima Sivaraman, popularly known as Punamamma, one of the most beautiful soul. Her energy is a blessing for us. After her teaching career, singing, writing, knitting are her new passion, which keeps her busy throughout the day. So let's welcome Punama. Namaste, everyone. Namaskar. Namaskar. Namika, dear Sarah blessing. Hope He blesses all of us. Thank you so much. I'm reciting in Tamil. Colors of life. நிறங்கள் கொன்ற சித்திரம் கடவுள் எல்லோருக்கும் கொடுத்து இருக்கிறார் நம்ம கையில் தான் இருக்கு எந்த நிறத்தை எப்படி வரையணும் என்று நிறங்கள் ஒவ்வொன்றும் நமக்கு பாடம் சொல்லித்தரும் சிவந்த நிறம் வாழ்க்கையின் பாடங்களை நம்மள் அறியப்படுத்தும் பச்சை நிறம் வாழ்க்கையில் முன்னேற வழி காட்டும் வெள்ளை நிறம் மனசை தெளிவாக வைத்துக்க வழிகாட்டும் மஞ்சள் நிறம் நம்ம வளர்த்திகளை அறியப்படுத்தும் வாழ்க்கை என்பது ஒரு கலர் படம் நன்றாக எழுத வேண்டும். The small meaning is God has blessed each of us with various colors of life. True. Love is the highest colors we can all spread around. It doesn't cost, only dil se hona chahiye. True. The different shades of the colors we see in the rainbow depict various values of life. Enjoy the colors of life at each stage of life. So let's make the whole world a colorful life, meeting always in between. Thank you, Divya. Thank you, everybody. Thank you, Have a Punamamma. good day. Have a Absolutely, good very day. well said. That yes, the colors of rainbow depicts so much meaning to us that we should keep spreading happiness, smiles to each one of us, and let's make world a better place. So yes, happiness is nowhere. Happiness is just within. Let's find and make our canvas the most beautiful one.
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर प्रिया भाटिया। डॉक्टर प्रिया भाटिया जम्मू शहर से हैं और अभी फिलहाल वो मलेशिया में रहती हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में पीएचडी किया है इन्होंने और इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। हिंदी, इंग्लिश के अलावा उर्दू, पंजाबी और डोगरी का भी ज्ञान रखती हैं। तो चलिए बिना देर किए हम डॉक्टर प्रिया भाटिया को मंच पर बुलाते हैं। सभी को नमस्कार। थैंक यू दिव्या मेरे इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई मस्ट से दैट आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और आज मेरा पहला पोएट्री रीडिंग सेशन है आप सबके साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब एंजॉय करेंगे। तो मेरी कविता का शीर्षक है गले मिलते रंग। मुझे ऐसा लगता है कि होली के रंगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो महज एक रंग नहीं है, उनके हाव भाव, उनको जैसे हम खेलते हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने जीवन के लिए। तो बस इसी थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ लिखा है, तो शुरू करती हूँ। बिल्कुल गले मिलते रंग। फागुन का महीना भाई मेरे मन को, फागुन का महीना भाई मेरे मन को, लाए जो संग होली के रंगों को। जब मिले एक रंग से दूजा रंग, नया रंग उभर आए। जब मिले एक रंग से दूजा रंग, नया रंग उभर आए। गर घुल मिल जाए हम भी ऐसे ही एक दूजे में, तो अस्तित्व में क्या ही निखार आए। इन रंगों की अपनी है एक खास पहचान, इन रंगों की अपनी है एक खास पहचान। निराशा के कोहरे पे आशा की धूप समान। कुछ काले सफेद पलों को मुझे रंगीन करने दो, कुछ काले सफेद पलों को मुझे रंगीन करने दो। बेरंग से आसमां पे इंद्रधनुष बिखरने दो। इन खूबसूरत रंगों की बरखा में भीगने दो आज अंतर्मन। इन खूबसूरत रंगों की बरखा में भीगने दो आज अंतर्मन। शांति और प्यार के जज्बे से भर दो आज का ये दिन। चहचहाते पंछी गुफ्तगू करे फूलों से, चहचहाते पंछी गुफ्तगू करे फूलों से। और फूल भी तो मानो रंग चुरा रहे हैं तितलियों से। कितने रंग हैं जीवन में नहीं जानती मैं, कितने रंग हैं जीवन में नहीं जानती मैं। हो गुलाल या सूरज की लालिमा, हो गुलाल या सूरज की लालिमा, नहीं अंतर कर पाती मैं। काश रंगों का ये मेल समझ में आ जाता, काश रंगों का ये मेल समझ में आ जाता। फिर जिंदगी के रंग मंच पर बस प्रेम रंग है फैल जाता। फिर जिंदगी के रंग मंच पर बस प्रेम रंग है फैल जाता। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रिया जी, आपकी पहली बार एंट्री हुई है डेफिनेटली, बट यस यू हैव बॉट सो मच, सो ब्यूटीफुल कलर्स टू आवर प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली हमें नहीं पता है कि ऊपर वाले की इस कलरफुल दुनिया के अंदर कितने कलर्स हैं, वी डोंट नो, बट जितने भी हमें दिखते हैं, लेट्स ग्रैब the positivity from them and spread happiness around. जी तो जी बिल्कुल हर एक रंग हमें कुछ ना कुछ नयापन जरूर सिखाता है। जी जी जी। थैंक यू। Absolutely. थैंक यू। Thank you so much, Thank Priya you. ji. Thank Thanks a lot. Glad you all enjoyed. Thank you. Thank you so much. तो यस, जीवन के रंगों की माला हम पिरो रहे हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं हमारी बहुत ही प्यारी अपनी रेवा सुदीप जी, प्राउड मॉम ऑफ सृजन एंड सक्षम। She has been advocating for autism and conducts awareness programs across various platforms to sensitize society for the past decade. She is also a professional content creator who loves to write and recite the musing of her mind. She believes writing is healing and therapeutic. So let's welcome Reva Sudeep ji. Thank you, Divya, yet again, and thank you for the lovely introduction. Thank you so much. बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आई मीन अमेजिंग पोएम्स कमिंग अप एंड टॉपिक भी ऐसा है कि रंग ही रंग है, तो रंग आर द बेसिक्स ऑफ लाइफ, वो तो है ही। तो मेरी एक छोटी सी पोएम है जो मैंने लिखी थी, तो आई नॉट वेस्ट मोर टाइम। इट्स टाइटल बसंत फिर लौटेगा। ओके, जरूर लौटेगा, जरूर लौटेगा और हर बार लौटेगा।
ये भीनी सी खुशबू किसने बिखेरी है, ये रंगों की तस्वीर किसने उकेरी है। वे उड़कर तितलियां किधर को जा रही हैं, क्यों मंडराते भंवरों से होड़ लगा रही हैं। वो चिड़ियाएं क्यों चहचहा रही हैं, वो किसके स्वागत के गीत गा रही हैं। वो चारों दिशाएं क्यों रंगरेज हो गई हैं, क्यों क्यारियां फूलों से लबरेज हो गई हैं, क्यों पेड़ों की डालियां झूल रही हैं, पत्तियां किसके इंतजार में बवराई सी रास्ता भूल रही हैं। क्यों ठंडी हवा पायल छनकाती घूम रही है, क्यों सुबह की ओस फूलों का मुख चूम रही है। सब वसंत के आने की तैयारियां हैं, रंगों से भर जाएंगी सब क्यारियां, खुशनुमा हो जाएंगे सारे रास्ते, फूल खिल जाएंगे रंगों के वास्ते। हर साल वसंत लौट कर आता है, हर बार यही संदेशा लाता है। फूलों की छटा फिर बिखरेगी, रंगों की फिर होगी बरसात, जीवन सुख में फिर होगा, बस छोड़ना ना उम्मीद का हाथ। So that was my little piece. I hope you liked it. That was Thank really a you. wonderful piece, रेवा मैम। और बिल्कुल Thank आपने you. सही कहा। अगर हम देखें, जैसे अभी पीछे बताया कि रेनबो के अपने कलर्स हैं, आपने बताया तितलियों के पास भी कलर्स हैं, फूलों के पास अपने कलर्स हैं। तो ऊपर वाले ने ये दुनिया बहुत ही रंगीन बनाई है, पर क्योंकि इंसान की फितरत है शिकायती, तो हम सिर्फ डार्क कलर्स जो हैं, काला और ग्रे शेड्स ही पकड़ते हैं। सो लेट्स डाइवर्ट, हमारे सबको डाइवर्जन की जरूरत है थोड़े से, कि ग्रे शेड से निकल के एक ब्यूटीफुल साइड ऑफ लाइफ देखें। और एवरीथिंग हैज अ ब्यूटीफुल मीनिंग, एवरी हैपनिंग हैज अ ब्यूटीफुल मीनिंग। सो यस Absolutely. रेवा जी, बिल्कुल बहुत सुंदर आपने पोइट्री बताई। बसंत जरूर फिर लौटेगा। बार थैंक यू बार सो लौटेगा, वेरी हर मच। बार लौटेगा। हर Thank बार you. लौटेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं बिहार के सीहोर जिले से रुचिका जी। पेशे से अध्यापिका हैं, एक लेखिका हैं, एक कवयित्री हैं और एक बहुत ही सहायक मित्र भी हैं। तो इनकी प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से समाज को प्रेम का संदेश देती रुचिका जी का आज हम यहाँ स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच रुचिका जी। अब सब कोई को हैप्पी रामनवमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। Absolutely. हाँ, और आज चूंकि जीवन के रंग के बारे में कहना था तो मैंने लिखा है कुछ, चूंकि जी मैं जी वहां पोस्ट स्वागत नहीं है कर पाई थी इसको, बट मैं आज यहाँ सुनाना चाहूंगी। जी। उसने कहा जीवन धूसर रंगों से भरी होती है, कहीं उदासी का मटमैला रंग, कहीं तकलीफों का भूरा रंग, कहीं अकेलेपन का काला रंग। बस इन्हीं रंगों से जीवन सजी होती है और इंतजार में बीत जाती की कहीं आंखों की चमक का चटक रंग, दंतुरित मुस्कान का चांदी रंग, खेतों में लटकती बालियों का झूमती लटकती बालियों का स्वर्ण रंग मिल जाए। फिर मैंने सोचा और बहुत सोचा और पाया जीवन इंद्रधनुषी रंगों का खूबसूरत मेला है। पलों में मिल जाती है खुशियां, अगर जी ले हम उन पलों को तो जीवन को मिल जाती है उत्साह का खूबसूरत रंग। मुश्किलों के से उबरने के लिए हौसलों और हिम्मत का जोशीला रंग। शुक्रिया कर ले अगर जो है हमारे पास उसका, तो मिल जाता है समृद्धि का हरा रंग, मिल जाता है समृद्धि का हरा रंग। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका जी। बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ आए हैं कि अगर हम काले भूरे रंग को छोड़ दें तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही रह जाएगी, और हमारे मन एकदम प्रेम से, स्नेह से और निस्वार्थ प्रेम से अगर भर दें तो हरियाली ही हरियाली है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए हम हरे रंग तक आ गए हैं। सब ने अपने अपने तरफ से हमारे कैनवस पर, मंच के कैनवस पर रंग बिखेरे हैं और ये कैनवस अब बहुत ही सुंदर तरीके से सजता जा रहा है। चलिए थोड़ी सी सजावट और आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं। हमारे साथ अगला जुड़ने जा रहे हैं स्वाति काकोडकर जी। Swati ji is a professional storyteller for the last 11 years. She strives to bring positive change among children through her initiative called
Story Ki Bori. Swati ji also find immense joy in reflecting and writing stories and poems. So let's welcome Swati ji. Thank you, Divya, and namaste. Good evening to Thank everyone. you so much. So, all of us have memories, right? Some are True. good, some are not so good, but they are all a part of us. True. So, when we go deep into our memories, we realize that there are a lot of associations that we have. For example, if I smell mangoes even today, it reminds me of my summer vacation. Or when we smell, new books, new textbooks, new school books, it reminds us of our school days and, the School first days. day of True. school when we got our books. So in the same way, I feel colors also have associations with them. And that is the thought on which my poem has been formed. While I write in English, nothing published, but I do dabble here and there. But this is my first attempt in Hindi. So Oh, let's that's see how, wonderful. yeah, so स्वागत है मैम. let's see how it goes. Yes, ma'am. So जब रंगों के बारे में मैं सोचती हूँ, तो मन में यादों की बारिश होती है. वो भूरे रंग की रेत जिस पर पापा के साथ मैं दौड़ती थी. याद आती है वो नीली सफेद लहरें जो पापा के जैसे मेरे मन को शांत कराती थी. नानी की वो हल्की गुलाबी साड़ी जिसके आंचल में मैं फूली ना समाती थी. हरा हरा अमरूद जो नानी बहुत प्यार से खिलाती थी. वे रंग थोड़े धुंधला गए हैं, मेरे अपने मुझसे दूर जो गए हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा मन को सहलाती है, चेहरे पे मुस्कान लाती है, जिंदगी में फिर से खुशी के रंग भर जाती है. Thank you. That was really a profound attempt, मैम. और आपको किसने कह दिया कि आपका पहली बार हिंदी का लेखनी में ये हुआ है रुझान, और आपने बहुत सुंदर लिखा है. और जैसे आपने जो भी रचना आपने लिखी है, इससे केवल पता चलता है कि आपने कुछ अपने पर्सनल बीते दिनों को याद किया है. और डेफिनेटली जब हम बात करते हैं तो हर चीज हमें कुछ ना कुछ जरूर याद दिलाती है. Every episode now or then associates with our some of the back memories. So बिल्कुल हम यादों में उन रंगों को फिर ताजा कर देते हैं. कभी मम्मी की मार, कभी पापा की डांट, और हर चीज एक बार. और आज अगर हम देखें, हम अपने बच्चों के साथ उन रंगों को एक बार फिर से जीवंत कर लेते हैं. वो चीजों को दोबारा दोहराते हैं, और हम उनको जब वो स्टोरीज बताते हैं, आप तो स्टोरी टेलर हैं, जब वो स्टोरीज बताते हैं, कहीं ना कहीं वी रिलिव दोज मोमेंट्स. सो यस, थैंक यू सो मच मैम. आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी रचना प्रस्तुत की. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और पीछे हमारे बहुत पार्टिसिपेंट इंतजार कर रहे हैं. उनका इंतजार अभी और नहीं बढ़ाते, हम स्वागत करते हैं उमा नटराजन जी का. Being versatile makes you learn several areas and design your canvas your way. Next is Uma Natarajan ji, who is a poet, blogger, singer, dancer, and a social activist who supports several social causes. So let's welcome Uma Natarajan ji. Thank you, thank you. Thank you It's so a much, ma'am. wonderful opportunity to be here. Thank you with so much, ma'am. I would like to add one more thing. I am a solo actress and act in short videos. Lovely, That's all. lovely. And performing artist on the stage. That's Okay. wonderful, ma'am. Thank you so much for gracing our platform And today, ma'am. one more thing is, I learned Tamil only after marriage. Oh, So my wonderful. attempt in writing Tamil is something new to me, but I enjoy it. And That's as inspiring. one more thing is to add, I know Marathi, Punjabi, English, Hindi, Sanskrit, and of course Tamil. Glad. Yes. That's really wonderful. So, okay. Now I will recite my poem, and Yes, ma'am. after that I will give you my gist of the poem. Sure, ma'am. Colors of life.
that is வாழ்க்கையின் வண்ணம். நமது வாழ்க்கை ஒரு அதிசய வண்ணம். காலை சூரியோதயம், அதில் அடங்கிய மஞ்சள் நிறம். நீல வானம், அதில் பறக்கும் வெள்ளை புறாகள். தோட்டத்தில் பூக்கும் சிவப்பு செம்பருத்தியும் கனகாம்பரமும் வெள்ளை மல்லிகையும் ஊதா நிறம் கொண்ட சிவப்பு ரோஜாவும் காவேரி நீரில் அடங்கிய சாம்பல் நிறம். மனிதரின் இனம் பழுப்பு, கருப்பு, மாநிறம் சிவப்பு. ஆனால் நம்ம உடம்பில் ஓடுகிற ரத்தம் சிவப்பு. நம்ம நிழலின் நிறம் கருப்பு. அமாவாசை இருட்டு, அது ஒரு கருப்பு நிறம். ஆனால் வெண்ணிலா ஜொலிக்கும் வெள்ளை நிறம். வயல் தோப்புகளின் பச்சை நிறம். நம்ம வளையல்களின் நிறைய நிறங்கள். அதே மாதிரி நம்ம உடுப்புகளின் பலவித வண்ணம். நம்ம சுவையான சாப்பாட்டின் அடங்கிய பலவித நிறங்கள். ஆண்டவன் இந்த கோலத்தை ரொம்ப அழகாக வடித்திருக்கிறான். Now I come to the English gist of the poem. Sure, ma'am. Life portrayal on the whole is colorful. Reddish rays of dawn and the blue sky and the colorful birds that fly and the various tinge of human beings. Some are black, fair, brown, different shades, but the red blood is just red. Silvery moon, green field, colors of bangles, and the attire that we wear. So life sketch is so colorfully painted by the nature itself. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And that was really a beautiful thought of yours. Yes, life is beautiful. The conclusion of each recital is life is beautiful and full of blessings. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट जिनका नाम है उमयाल सुब्रमण्यम, an early childhood educator with over a decade of experience and runs her own play school. She loves seeing the world through little eyes, and she looks forward to inspiring people to give back to society in a way that matters. So let's welcome Umayal Subramaniam. Hello, hi, thank you. Hi. Thank you so much, Umayal. So everybody spoke about lots of colors, and I have taken only one color, and it is my favorite color, pink. Oh, wow, lovely. Yes, please. So this poem is titled Pink is the Color of My Life. I'm fuchsia when I'm passionate and friendly. I'm blush when I'm shy and coy. I'm rose when I spread fragrance all around my house. I'm carnation when my face lights up in exhilaration. I'm rogue when it comes to protecting my little ones. I'm cornflower when I'm sweet and playful. I'm taffy when I need to be mellow and charming. I'm peach when people confide in me and embrace inner peace. I'm pink, the color of universal love for self. Absolutely, that was wonderful. Pink is the color of love because we have defined it as the color of love. Yes, it was really a beautiful one, Umayal. So, yes, may God bless you with more pinky pinks around. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Umayal. So after pink, we have lot many colors coming up with our next participant, and she is none other than Vanishri Venugopal, loved to be known as Pushka's mom. She is a mentor parent, small artist, and a valued member of the core team.
at Spectrum, the Awareness Project. So let's welcome Vani Akka. Hi, namaste, good evening to Namaskar, everybody. namaskar. First of all, thank you for the generous intro, Divya. Thank you so much. Loved what you said. And then Sri Ramanami wishes to everybody. Are you able to hear me Yes, yes, ma'am. clearly? Okay. I have written a poem in Tamil and it goes like this. Vaalkaiyin Vannangal is the title of the poem. Colors of Life. கருவறையின் இருட்டில் கண்டது கருப்பு. ஒளியும் ஒளியும் அனுபவித்தது அன்னை மடியின் கதகதப்பு. பள்ளிப்பருவம் கள்ளம் கவடமற்ற வெண்மை. வெள்ளந்தியான குழந்தை மனதை இனி மீட்க முடியாது என்பதே உண்மை. விடலையாய் சுற்றிய வாலிபம் பல பல வண்ணங்கள் உணர்த்தியது. வாழ்க்கையின் வாயிலில் நின்ற என்னை எல்லாமே வெற்றி என்று வரவேற்றது. சற்று கடந்து குடும்பம், குழந்தை, பொறுப்பு, சுமையாய் பச்சையாய். சுகமான சுமைகள் சுமந்த வண்ணம் கடந்தேன் பாதி வயதை தன்னிச்சையாய். முதுமை முகத்தில் முடியோ சாம்பல் வண்ணத்தில். முடிவில் விடை பெற இறைவனடி சரண் புக சப்த நாடி அடங்க உறங்கப் போனேன் தூய்மையான வெள்ளை மன வண்ணத்தில். That's the poem, and I can just give you a small Sure, ma'am. Yes, please. bit of it in English for everybody to understand. Colors of life. Everything was black in mom's womb. I experienced sound and light in the warmth of mom's lap. Childhood and related innocence was just white. That phase of life can't be rewound, and that's true. As a youth, felt carefree, and that showed me red, orange, yellow, blue, and an array of beautiful colors. Standing in life's gateway, I was welcomed with the words, all is victory. A little ahead, family, kids, responsibilities weighed down the reality in green. I bore the happy burdens and finished half the way, all on my own. Old age hit my face. Hair got salt and pepper, gray. In the end, to bid farewell, to surrender to the Almighty, when all in me stopped, I went to sleep forever with a clean, white soul. Aha. You have concluded everything, Vani Akka. That was Thank you so much. most touchy one. Yes, everything was dark inside, and after we opened our eyes, with each day we got into more responsibility. The more we indulge in the responsibilities and the worldly affairs, we get to see many colors, many shades, and it is our noble duty to pick up the best colors of life. So that was a wonderful one. One more thing I would like to add here, that the way, Vani Akka, I just want to compliment you. You were reciting. Oh, you know Hindi. I know you are a Mumbaikar. So हम लोग टीवी में कभी कभी तमिल मूवी लगाते हैं, समझ कुछ नहीं आता, but sometimes you feel good hearing them. Sometimes हम कोई भी language की regional हम लगाते हैं, but this was happening today while you were reciting, though I was not understanding Tamil, but I could make out that it was a beautiful coming up from you. Thank you so much. Thanks. Thank you so much. So yes, Vani Akka did spread the shades of her colors, beautiful colors, and her brushes all dipped in the color now. Next is Yogeshwari Singh Dhakaji. I would like to give a little brief about her. Yogeshwari Dhakaji is a talented artist and a poet from Indore. With a passion for creating art, Yogeshwariji's paintings come alive with vibrant colors and emotions. She is also a prolific poet, always carrying a diary to capture her creative expression as they strike. So let's welcome Yogeshwariji here and see what she has in her kitty for us. नमस्कार सभी को। नमस्कार योगेश्वरी जी, बहुत बहुत आपका बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद दिव्या जी, ये मौका मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। रंग मेरे लिए एक मेडिटेशन जैसे हैं। वैसे तो मैं हमेशा कैनवास पर ही बिखेरती हूँ, पर आज कविता के माध्यम से आपने मुझे पहली बार यहाँ मौका दिया है, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी। और जब ये टॉपिक हमें मिला था तब होली का त्योहार था, उसी के ऊपर मैंने ये अपनी कविता लिखी है।
और जी होली का त्योहार एक त्योहार ना होकर खुशियों का एक प्रतीक होता है, जो हमारे जीवन को रंग और मस्ती से भर देता है। एब्सोल्युटली। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये पोयम लिखी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। होली के सब रंग मिलाए हैं मैंने, होली के सब रंग मिलाए हैं मैंने, अपने जीवन के रंग में, अपने जीवन के रंग में। हर रंग अनोखा भर देता है, हर रंग अनोखा भर देता है, जीवन में खुशियों का तोहफा, जीवन में खुशियों का तोहफा। होली के हर रंग में भरा है कूट कूट कर उल्लास, होली के हर रंग में भरा है कूट कूट कर उल्लास, भर देता है जीवन में एक अजब उजास। परिचय हो जाता है बचपन से, परिचय हो जाता है बचपन से, जीवन के रंगों के साथ, होली के रंगों के साथ। भूल चुके हैं जिन रंगों को अपने जीवन में, भूल चुके हैं जिन रंगों को अपने जीवन में, होली के रंगों से रंग जाता है जीवन का कैनवास। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमें ये लगता है कि होली के समय ये टॉपिक जो हमने रिलीज किया था बहुत सही समय था, और सबके जो कैनवास विजन्स थे वो एकदम वाइड ओपन हो गए, और रंगों का एक नया ही रंग सब लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मंच पर पहली बार जुड़े हैं, हम आशा करते हैं आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट फिलहाल यहाँ हाजिर नहीं हैं, और उनकी अनुपस्थिति के कारण हमारा ये अगला रिसाइटल जो है हमारी फ्रेंड सुषमा जी पढ़ेंगी। तो पहले मैं आपको उनका परिचय देना चाहूंगी। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अनुदीप कंडुला जी। He is a non-speaking autistic poet, co-author of Talking Fingers, designer of Talking Fingers magazine, and a self-advocate. So because उनकी जगह पर ये रचना उनकी पढ़ेंगी सुषमा जी। तो सुषमा जी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। Hi Divya, so good to listen to so many beautiful poems, and thank you so much for having. It's an honor actually, to read the poems on behalf of the poets. And Absolutely. I have 3 poems to recite, and I'll start with Anudeep, and then I'll also recite Arav's poem. And we have Arun sir here with us, so it's an honor that he's there, and I'll be reciting his poem as well. So first Sure. with Anudeep, Anudeep is he's a young adult, and he's a non-speaking autistic adult, and he has been the co-author of Talking Fingers. Yes. And Padma ma'am, his mother, she has been always supporting whatever he feels to communicate. And the poem which you will listen now, it somewhere reflects about the bond which we share with ourselves, with the people around, and it talks so much about how you recognize yourself, how you see yourself, and how you learn on the way. So the poem goes like this. The title of the poem is Shores of Time. On the shores of time we meet again and again, carry forward the bond of love, resume the incomplete conversation, take the next step in your thirst of learning. We don't start from the beginning, but from where we left off. Mysteries of the souls are beyond logic. Logic is linear and soul is eternal. Mind learns language, soul speaks in silence. That silence is decoded by the heart. That silence encompasses all languages known to man. Soul recognizes one another. We meet as strangers, but bond as a family. On the shores of time, we meet again and again. That was the poem that Anudeep had shared, and as I speak, it speaks volume about how you see life and what you take of it, right? And It carries a deep meaning, yeah. Yeah, it carries deep meaning, and it's a wonder to see the young adults
emoting, what they feel like, expressing that with words and by means. So that was Anudeep. Next is Arav's, which I would read, as Arav's mom, Palak Trivedi, she's not here today with us. Yes, please. Go on. Yeah, so Arav's poem, the title of the poem is Colors of Life. Can you think of anything without color? Life without color will not matter, and slowly it will shatter. The sky is shining bright with a rainbow. Paint your life with a great show. Each season is painted with different colors for a reason. Let us live our life and celebrate every occasion. Absolutely, that was Absolutely, we wonderful. all can agree with this. This is such a sweet Absolutely. poem, but it's like the biggest takeaway for all of us and a reminder for all of us. True that. Thanking both of them and the mothers, to help them and guide them to, write poems and express so beautifully. The next poem is by Arun sir. He's here, I guess, in the session also. Yes. Yeah, he is here. And Sushma, let me introduce him please here, and then you can carry on with his recital. So next is Arun Chakya ji. Arun ji is a Nepalese national, is an IT professional and a parent advocate with 25 years in India's IT sector. So let's welcome Arun ji here, and Sushma will be reciting on his behalf. Please Thank you. go on, Sushma. Thank you so much for giving me this honor. And I would also like to tell that once I finish reciting the poem, maybe if Arun sir can share a line or two, the thought behind writing this poem. Sure. So yeah, let me just scroll up. The title of the poem is मेरी ख्वाहिशें तुमसे अलग कहाँ थी। दोस्तों के साथ जन्मदिन का केक काटते, गिफ्ट्स लेते हुए, हंसते खिलखिलाते, वो दिन तुम कितने खुश दिखे। मैं भी था शामिल उसी महफिल में, मैं भी बहुत खुश था, बस तुमको बोल नहीं पाया, पर मेरी ख्वाहिशें तुमसे अलग कहाँ थी। स्कूल बस में मम्मी को बाय बाय करते, रोते हुए स्कूल गए थे हम सब। अजीब तो मुझे भी लगा था, समझ तो मुझे भी नहीं आया, क्यों दूर जा रहे हैं हम मम्मी से। मेरा बस रोना ही हो पाया, पर मेरा दर्द तुमसे अलग कहाँ था। आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर और प्लेन देख के कितना अच्छा लगता। तुम बड़े होकर वो हेलीकॉप्टर के पायलट और प्लेन के इंजीनियर बनने के सपने बयां करने लगे। मैं बस कागज पर उन्हीं चीजों को ड्रॉ करके बनाने लगा, पर मेरी दिल लगी तुमसे अलग कहाँ थी। मेरे दोस्त फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते, जीतते हारते सेलिब्रेट करते। समझ तो मुझे भी आती थी ये सब चीजें, पर मैं उनको खेलते देख ही मुस्कुराता है। पर मेरा जोश तुमसे अलग कहाँ था। क्लास में मेरे दोस्त लोग मैथ्स साइंस खूब पढ़ते, आगे बढ़ते, मैं सोचता ही रह गया, मुझे क्यों समझ नहीं आती ये बात। पर मेरा जुनून तुमसे अलग कहाँ था। मेरे जो एहसास हैं वो तुमको भी होते होंगे। जातों की झप्पी तुम भी चाहते होगे बार बार। दिल उदास होता हो तुम्हारा भी कई बार। माँ बाप साथी तुम भी चाहते होगे हर वक्त अपने आसपास। हर खुशी का इजहार तुम्हारी रूह भी मासूम हंसी से करती। जब नजरें मिलाते हो किसी से, उसकी हाले दिल का अंदाजा तुमको भी होता। एक जन्नत, एक आजाद परिंदे की उड़ान, अपनी मदहोशी के नक में गाते हम नहीं थे क्या तुम्हारे जीने का मकसद था। पर मेरे पास बस लफ्ज नहीं, ना ही गुनगुनाने के लिए कोई नज्म जो बयान ना। ऐसा तो नहीं कि वो कहानी ही नहीं जो लिखा ना गया, कि उसे पढ़ा ही ना जाए। और ऐसा तो नहीं कि हर नगमा कुछ अल्फाजों का मोहताज हो। मैं इंसानियत का वास्ता देता रहा मेरी खामोश लबों से, पर मेरी ख्वाहिशें तुमसे अलग कहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब निशब्द कर दिया ये रचना ने। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा अरुण सर आपने, और हम चाहेंगे कि आप इस रचना को लिखने के पीछे की अभिव्यक्ति हम सभी के साथ साझा करें। Sure. Thank you so much. Actually, my elder son,
सिद्धार्थ ही इज 18 ईयर्स। उसको डायग्नोसिस हुआ था ऑटिज्म का जब वो 4 साल का था। तो एक्चुअली वो एक सिचुएशन था बहुत पैनिक मोमेंट का। देन हम लोग वो पूरा वो डिनाइल स्टेट पे थे, डिप्रेशन पे थे। देन हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल हीलिंग भी लेने लगे टू रियली कम आउट ऑफ इट। तो ये पोएम मैं उस टाइम पे लिखा था जब वो एक स्टेट पे मैं एक ट्रांजिशन हो रहा था, जब मैं एक एक्सेप्टेंस स्टेज पे आ गया था कि मैं समझने लगा था अपने बच्चे को। वो डिनाइल से बाहर आ रहा था, तो कि समझ में आ रहा था कि कैसे उससे हैंडल करना है, व्हाट ही इज ऑल अबाउट, राइट। एंड उसी टाइम पे मैं एक बुक भी पढ़ रहा था, द रीजन आई जंप। तो एक वो भी एक इंस्पिरेशन है इसके बिहाइंड कि मैं खुद ही एक बार मैं कोशिश किया है लिखने की, लाइक शायद वो लोग कैसे व्हाट दे गो थ्रू, राइट। सो एक कोशिश था ये। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर कोशिश थी। एंड यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि एक फादर का डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डेडिकेशन एंड ट्रस्ट यहाँ पर पूरी तरह से पूर्णतः झलकता है आपकी रचना से। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, शुक्रिया। एंड थैंक यू सुषमा फॉर reciting, for coming on the screen and sharing the recitals with us. Thank you so much. तो यस, जैसे हम हर बार शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि हर शुरुआत का एक अंत भी होता है, पर कई बार अंत मन को थोड़ा हैवी कर देता है। बस वही समय आ गया है कि अभी हमारा मन थोड़ा हैवी हो रहा है, क्योंकि अब जो आ रही हैं वो हमारी लास्ट पार्टिसिपेंट रहेंगी फॉर द इवनिंग। और सबसे पहले उनको बुलाने से पहले उनका थैंक यू करना चाहूंगी। बहुत देर से वो पीछे बैक स्टेज पे वेट भी कर रही हैं। तो चलिए उन्हें बुलाते हैं। शी इज नन अदर देन अनामिका अग्रवाल जी। Anamika holds the MBA background and has worked in an international NGO, Care India, previously. Currently, she is working as a finance executive with a private firm. She is extremely passionate about literature and is a prolific celebrated writer on several platforms. So let's welcome Anamika ji. Hello and namaste everyone. Namaste. Thank you, Divya. Thank you, Divya. Thank you for Thank you giving so me much. this opportunity for expressing my feelings. The colors of life. Yes. The colors of life, no matter how much it fades or light, but with constant effort and strive, one can make it twinkling and bright. Colors makes us smile, cheerful and delight. Color influences the goal. Color spreads to become twilight and embraces the soul. Colors makes life the festival of emotions. It tries to unhide the feelings. Life is for living it to the fullest, but with compassion, as it has the effect of healings. Nothing is colorless in this nature. It is the color that binds together and nurture. Life is the canvas and we are the painter. So create the color that you can always treasure. Thank you so much. Absolutely, absolutely. कैनवस भी अपना है, ब्रश भी अपना है, पेंट भी अपने हैं. So design it the most beautiful way. So thank you so much, Anamika. And that was for the day. बहुत अच्छे से सबने अपनी रचनाएं सुनाई एंड डेफिनेटली सबकी रचनाओं से हम सभी ने कहीं ना कहीं रेजोनेट भी किया, कुछ ना कुछ हमें टेक अवेज भी मिले हैं और बहुत सारे इनसाइट, प्रोफाउंड थॉट्स हम लेकर जाएंगे। पर अभी शो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे सुनाना बाकी है। तो पोएट्री नहीं लिखी है इस बार, मैंने भी एक लेख लिखा है। कोशिश की थी, कलम उठाई थी कि एक कविता में पिरो डालूं, पर चलते चलते शब्दों ने एक लेख का रूप ले लिया। तो वही लेख आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी और आशा रखती हूँ कि मेरी रचना आप सभी की दिल की गहराइयों तक जरूर पहुंचेगी। रचना कुछ इस प्रकार है। अचानक उसने मुझसे कहा, आजकल तुम लिखती क्यों नहीं? मैंने आश्चर्य भरी नजरों से पलटते हुए उसकी ओर देखा। संभवतः आज उसके मन में
किसी ख्याल ने घर कर लिया था। मुस्कुराते हुए मेरी आंखों ने भी क्षण भर में उसके भीतर की लालसा को पढ़ लिया और मन ने आज फिर पूछ लिया, बताओ क्या पढ़ना चाहोगे? एक छोटे बच्चे के समान उत्सुकता पूर्वक उसने कहा, तुम्हारे जीवन के रंग। उसके मुंह से निकले शब्दों को सुन न जाने क्यों मेरे भीतर कंपन की एक लहर दौड़ गई। मेरे जीवन के रंग? संकोच भरी नजर से जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, मेरी पलकों में आश्रय लिए खुद को संभाले जल की वो धारा ने अपना संयम तोड़ दिया। मन में उमड़ता उफान आज शांत जो होने वाला था, मेरे ख्यालों को सुनने वाला जो मेरे सामने बैठा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शबरी के समक्ष प्रभु राम उसकी व्यथा सुनने के लिए आतुर हों। मेरी भावुक मनोदशा देख उसने कहा, अच्छा चलो बताओ तुम्हें कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रिय है? मेरे मुख से निसंकोच एक ही स्वर प्रत्यक्ष रूप से निकलकर गूंज उठा, काला। मंद मंद मुस्कुराता अचरज भरा उसका स्वर, क्या काला? अरे ऐसा क्या है काले रंग में जो तुम उससे इतना प्रेम कर बैठी? मेरी आंखों से अब मेरी आत्मा उत्तर देने के लिए व्याकुल थी। हाँ, काला। सुनना चाहोगे? मेरी प्रसन्नता अब कहाँ रुकने वाली थी? अब समय जो आ गया था अपने भीतर दबे प्रेम को चंद शब्दों में पिरोने का। आज तो निश्चय ही नेत्र अपना संयम खो देंगे और शब्दों में निश्चल प्रेम की बहाव रोके न रुकेगी। काला रंग, हाँ काला रंग, देखो ना कितना निर्मल है, बिल्कुल तुम्हारे पसंदीदा श्वेत रंग के समान। श्वेत रंग के समान? भला वो कैसे? काला रंग संपूर्ण प्रेम दर्शाता है। अब तुम ही बताओ, क्या कभी काले रंग का मलिन होना संभव है? नहीं ना? श्यामा केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम ही परिभाषित करता है। फिर चाहे तुम अपने जीवन का कोई भी रंग लेकर उसके समक्ष खड़े हो जाओ, वह तुम्हें हर रूप में स्वीकार कर अद्भुत प्रेम दर्शाता है। पर काला रंग तो अशुभ माना जाता है ना? नहीं, यह मात्र केवल मन की धारणा है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। निर्भय, समृद्ध, आशक्त, परिपूर्ण और प्रेम से लबादा है मेरा ये काला रंग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक छोटी सी रचना थी मेरी तरफ से और हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे जिन्होंने मंच को बहुत सुंदर तरीके से सजाया। और as we bring this session to a close, we are filled with gratitude for the powerful words shared by our esteemed participants. Thank you to each and everyone for sharing your valuable time with us. And yes, stay tuned for the upcoming prompts on the Facebook, and we'll definitely be updating our next prompts on the Facebook. Requesting our backstage team to take a Kodak moment and just capture the moment and treasure it. So once you are done, please let me know. Thank you so much. So yes, thank you so much one and all here, and to all our viewers backstage stream, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं हमारे साथ प्रस्तुत की और इस कैनवस को, जीवन के कैनवस को और रंगीन बनाया। डेफिनेटली आप सभी की रचनाओं से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला। हर उम्र के हर पड़ाव पर हमें लाइफ एक नया लेसन देती है। जस्ट ग्रैब द लेसन एंड बिलीव इन द ग्रैटिट्यूड, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, और बस उसके बाद लाइफ एकदम इजी है, सिंपल है और ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। अगली मुलाकात जल्द ही करेंगे। इसी प्रॉमिस के साथ आज की संध्या को यहीं विराम देंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी व्यस्त रहें। शुक्रिया। थैंक यू दिव्या। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवाली।